So today the discussion is going to revolve around, the idea of poverty. And today we will focus on the idea regarding the capability approach which is given by Amartya Sen. तो उस चीज पे हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, उसी चीज को लेके थोड़े से इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज लेक्चर नंबर 4 and the main theme or agenda for today would be to discuss the idea in detail. So, all right. So more or less wherever we have studied regarding development, तो उनको बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा गया है कि इफ पीपल हैव एक्सेस टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम और नॉट, राइट, सम थ्रेशोल्ड इनकम लेवल, इस चीज को हम लोगों ने हमेशा कंसिडर किया है. इफ पीपल हैव एक्सेस टू अ थ्रेशोल्ड इनकम लेवल और नॉट. Or maybe, considering things like whether they have access to a house or not, whether they have good tap water or not. When we would, in the beginning, उनके कुकिंग बिहेवियर, उनके ट्रांसपोर्टेशन बिहेवियर, उसके बेसिस पे. सो दिस इज गोइंग टू गेट मिक्स्ड अप. स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग टाइप, किस तरीके की क्लोथिंग है, किस तरीके की रिसोर्सेज की एक्सेस है, उसके बेसिस पे वी वर डिवाइडिंग पीपल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, राइट. सो the main idea behind this approach is poverty or lack of development is not just a lack of resources. हो सकता है कि we may somehow provide resources or commodities or goods to people, but still they may not be able to use them properly because of various reasons. Secondly, we should also try to incorporate, the mental aspect, the emotional aspect, the society aspect to poverty or development as well, rather than, just thinking about material things while defining whether somebody is poor or not. This is the main idea. तो जो मेन चीज निकल के आती है वो ये है कि the way things have been defined so far have always considered commodities as an end in itself. So there is something called, जैसे मान लो आप एक certain amount of income पुअर पीपल को प्रोवाइड कर देते हो, और आपको लगता है कि ठीक है, जो चीजें आपको करनी थी वो आपने एज गवर्नमेंट, एज पॉलिसी मेकर्स प्रोवाइड कर दी. So money, according to you, was a end in itself. कि okay, I gave money to people and that is enough. But the main idea that Sen proposes is it's not just an end in itself, it is a means to something, access to opportunities. And maybe, if you provide commodities to people, if they are not able to use that to, you know, be socially well, to be mentally well, to have good mental health, to feel that they are also important in society, all these kind of aspects are missing, then ये बहुत ही एक narrow definition होगी according to him. So he said, हमें rather than material access to things as a criteria to decide whether people are poor or not, rather we should consider the capability to function. This thing should be the criteria to decide or to categorize people as poor or non-poor.
And in while saying that, we are in no way saying कि commodities की access होना is not important. That is step one. वो तो होना ही चाहिए. But that is not all. This is what we are saying. So we are saying कि commodities जो हैं, commodities का production, commodities की access, this should be valued, but not for their own sake, but not for their own sake, but rather as a means to human welfare and freedom. So यहाँ पे what are they trying to say? They're trying to say कि ठीक है, we are thinking about, having a good enough GDP growth. We are thinking about increasing the production. Yes, all of this is necessary, but we cannot just stop there. We cannot just think that, okay, if materially a particular society is doing well, uh, it's not necessary if people are actually feeling that they have the freedom to do things. We will see different instances of this in some sort of examples that we will do today. So, यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि फैमिली लेवल पे a family might be doing well materially, right? Family is well off, they have decent income, they have decent resources, all the commodities that we talk about, वो सब लोगों के पास उन सब चीजों की एक्सेस है, ठीक है? बट एक फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बच्चों में मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, तो देर इज अ होल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज देयर. तो फैमिली लेवल पे थिंग्स माइट बी गोइंग वेल, बट हो सकता है कि जो सिबलिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वहां पे जब विद इन फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो मे बी फीमेल्स थोड़े डिसएडवांटेज पे हैं एज कंपेयर टू मेल्स, इफ दैट फैमिली इज ऑफ दैट माइंडसेट, या वो उस तरीके की जगह में रह रहे हैं. तो यस और नो? यस मैम. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक स्कूल है किसी जगह पे, उसको कोई फंड मिला, दे गेट अ फंड फॉर रेनोवेशन पर्पजेज. गवर्नमेंट माइट थिंक कि ठीक है, वो फंड्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, लोगों को भी लगे कि हाँ ठीक है फंड्स हैं तो दे कैन यूज इट. बट हो सकता है कि वो फंड्स कुछ ऐसी चीज में यूज हो जाएं कि मान लो सबको हमने साइकिल्स दे दी, या सबको हमने सब हर बच्चे को साइकिल प्रोवाइड कर दी ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन का मसला सॉल्व हो जाए. सपोज दैट इज वन पॉलिसी, राइट? बट अब ये स्कूल मान लो एक ऐसी जगह पे है जहां पे फीमेल्स डोंट फील सेफ व्हेन दे आर ट्रैवलिंग. सो हो सकता है कि आपने साइकिल प्रोवाइड कर दी हो, आपने मटेरियली उनको केपेबल बना दिया, बट अगर मैं मान लो क्राइम इन दैट एरिया की बात करूं या सेफ्टी इन दैट एरिया की बात करूं, मे बी दैट इज नॉट गुड. So materially, as a girl child, maybe I'm possessing a cycle, but I don't have the environment to be able to use that without being scared, right? Yes मैम. That is problematic. As a family, we might have resources, but हमारी फैमिली में या जिस तरीके की मान लो हम लोग जिस तरीके के एरिया में हम लोग रहते हैं वहां पे मेजॉरिटी
spending is done on the male child. तो हो सकता है कि बहुत सारा हिस्सा ऑफ मनी या जो भी एक्सपेंडिचर है वो मेल चाइल्ड पे हो जाए. फीमेल चाइल्ड माइट बी आस्क्ड टू स्टे एट होम एंड नॉट इवन गो टू स्कूल, राइट? Similar things Yes, ma'am. on the decision making aspects. Maybe the female counterpart may not have say in decisions at home. They might feel suppressed. Materially you might be doing well, but whenever a person considers ki how are they doing, they don't just consider access to material as a criteria, but rather they think about a lot of other things, right? We agree to that, Yes, ma'am. है ना? तो दिस इज द मेन पॉइंट दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो उन्होंने, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल लिया था कि बुक्स अगर हम लोग प्रोवाइड कर दें, सो दैट विल मीन डिफरेंट टू अ पर्सन जिसको बेसिक नॉलेज है, दैट पर्सन विल बी एबल टू यूज दैट रिसोर्स, एंड द पर्सन हु इज इलिटरेट माइट फाइंड जस्ट कि वो किताब को बस जला के हम लोग जो है सर्दी में आंच लें या आग जलाएं, सिर्फ उसका Yes, शायद ma'am. उसके दिमाग में, उसकी लाइफ में सिर्फ उतना ही हो. Similarly, you might provide food to a person, but उनकी जिंदगी में मान लो उनको कोई डिजीज है या वो कोई डिफिशियंसी से सफर कर रहे हैं, तो वो फूड उनके लिए उतना यूजफुल नहीं है एज कंपेयर टू अ पर्सन जो कि हेल्दी है. तो कमोडिटी लेवल पे सबको आप सेम कर दो, लेकिन फंक्शनिंग लेवल पे आप हो सकता है कि लोग डिफरेंट हो. सो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनिंग. So Amritya Sen is saying कि it's not just the commodity or material access, but it's rather the functioning. अब functioning का क्या मतलब है कि इनका कहना है, Ma'am, yeah, did we link the example which you give with public distribution system which we have in India? we can link it to that कि ठीक है लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करी जा रही है ग्रेन्स की, बट हो सकता है कि आप ये देखो कि सेम ही वैरायटी ऑफ ग्रेन्स में बहुत अलग अलग क्वालिटीज भी आती हैं. कुछ क्वालिटीज बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल होती है, कुछ क्वालिटी Yes, ma'am. कुछ ग्रेन्स उतने न्यूट्रिशनल नहीं होते. Okay, ma'am. One thing, again on a human level, if you are not healthy to begin with, आपको कोई भी चीज प्रोवाइड कर दी जाए, आपको सेम रिजल्ट नहीं मिल पाएगा. Yes, ma'am. तो हम एक स्टेप बियॉन्ड जाके बोल रहे हैं कि कमोडिटीज की तो हमें जरूरत है, बट डोंट स्टॉप एट द कमोडिटी लेवल. थिंक कि अगर आप सेम लोगों को सेम कमोडिटी एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो, दे might have a very different feeling about those things. So the main idea that comes into picture is the following. So what is the idea? Let me mention that. तो उन्होंने क्या कहा? What matters fundamentally is not the things a person has, or what feelings these things provide to that person, but rather what matters is what a person is. So what is his current situation, and or what he can be, and what he does, or what he can do. This is what matters. So what he's trying to say is, it doesn't matter कि उसके पास क्या है और जो भी चीजें आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, what is he feeling about that, but rather कि who is that person essentially, what is that person essentially, what is that person essentially का मतलब क्या है कि उसकी current state क्या है. Is he healthy, is he well nourished, is she healthy, is she well, does he have a self esteem,
Do they feel confident? These kind of things. Or are they even hopeful that their life can change? And what kind of things that people are doing or people think that they can do using whatever things that they have. तो एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो गई, राइट? Yes, ma'am. कि जैसे मान लो किसी इंसान ने व्हाई डू पीपल थिंक एक्सपोजर मैटर्स, कि लोग अपने बच्चों को बड़े शहरों में जाके पढ़ाना क्यों चाहते हैं? वो उसका रीजन ये होता है कि उसका रीजन ये नहीं होता है कि पढ़ाई बहुत अलग होगी। उसका रीजन ये होता है कि जब इंसान बड़े शहरों में जाता है तो वो कितनी अलग अलग तरीके की चीजें देखता है। तो आप वो चीजों में से जो भी चीजें आप देख रहे हो, वेदर यू डू इट और नॉट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट वेदर यू थिंक if someday you want to do it, can you do it or not? It gives you maybe that confidence, or maybe you, even in your mind you can start thinking कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे काफी जगह में अगर आप देखते हो, स्कूल लेवल पे अगर मैं बात करूं, क्लास 11-12 में दो ही मेन चीजें बोली जाती हैं कि या तो आप मेडिकल कर लो या तो आप इंजीनियरिंग कर लो। मैं हमारे एरिया की बात कर रही हूँ, हमारे Yes, एरिया ma'am. इसी तरीके के थॉट प्रोसेस हैं। इफ समबडी टेक्स आर्ट्स, उसका बेसिक क्राइटेरिया ये माना जाता है कि ओके, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है या तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो तुम आर्ट्स कर लो। या कॉमर्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी जिस वक्त पे मैंने क्लास 12 की थी। तो एक तरीके से पीपल आर जस्ट यू नो into these two things, okay, do engineering or do medical, these two options are there। तो इतना इस तरीके से आई यूज्ड टू सी पीपल हु आर डूइंग आर्ट्स, दे वर ऑलवेज ट्रीटेड लाइक कि एक इस तरीके की ट्रीटमेंट नहीं मिलती है कि थर्ड क्लास सिटीजन हो तुम, और तुम्हें तुम्हें ज्यादा तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, तो चुपचाप ये क्वेश्चन है और ये थियरी है, ये कर लो और ये पढ़ लो। उस तरीके के माहौल में अगर कोई बच्चा रहेगा और मान लो वो बाई चॉइस हिस्ट्री पढ़ना चाहता है या कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो उसको क्या फीलिंग आएगी कि आर्ट्स लेके जिंदगी में कुछ किया नहीं जा सकता। और ना ही उसने अपनी जिंदगी में आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जिनको देख के वो इंस्पिरेशन ले सके कि आर्ट्स पढ़ के भी कितना कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो एक तरीके से वो उस थॉट प्रोसेस के बाहर ही निकलेगा। Yes, ma'am. सिमिलरली एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, मान लो किसी बच्चे ने बचपन में, हम लोग प्लेन्स देखते हैं, एरोप्लेन्स देखते हैं, तब हमें लगता है, हर बच्चे से पूछो कि आपको क्या बनना है तो वो बोलते हैं हाँ हमको जहाज उड़ाना है, हमको पायलट बनना है। दैट इज सम एस्पिरेशन दैट पीपल हैव। व्हाई डू दे हैव दिस? बिकॉज दे सी दैट इन द एयर, राइट? वो आसमान में देखते हैं तो उनको देखता है, और वो प्लेन उड़ते हुए देखते हैं और उनको बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हाँ, वो कैसे बनेंगे, क्या होगा, वो एक अलग ऑप्शन है, बट एटलीस्ट इंसान सोचना तो शुरू करे। Yes, ma'am. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि अगर आप किसी को एक ऐसे माहौल में रखोगे जहां पे उसको ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहली बात दिस इज नॉट इवन पॉसिबल, तो एक तो उसके ख्यालों की ही बाहर हो गई वो बात, और दूसरी उसको बार बार इस तरीके से बोल के ऐसा फील करा दिया जाए कि वो ऐसे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक और बढ़िया पैरेलल हम लगा सकते हैं, जिनकी फैमिली में लोग जॉब करते हैं, उनको कभी दिमाग में ज्यादा आते होंगे आइडियाज कि हाँ ठीक है हम भी बिजनेस करेंगे, बट एक बहुत ही फार फेच थॉट लगता है उनको कि बिजनेस हाँ ठीक है करेंगे, ऐसे वैसे होगा वैसे होगा, बट कभी भी वो एक्चुअली ये नहीं सोचते कि क्या हम बिजनेस कर सकते हैं। बट जैसे मान लो आप अपने पीयर्स को देखो, अगर उनमें से अगर आप कुछ लोगों को देखो कि वो कुछ अगर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो आप में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर वो कर सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं, वो भी हमारी जैसे ही तरीके की जगह से पढ़ के आया है, राइट? Yes, ma'am. दीज थिंग्स मैटर, इसीलिए दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, यू नो Ma'am, टू, या did we say that Amartya Sen capability approach is mostly linked to the psychology of a human? नॉट जस्ट दैट, साइकोलॉजी भी नहीं, बट वो ये बोल रहे हैं कि किसी भी, कि जो भी आप
जो भी मेजर्स लेना चाहते हो, जिस तरीके से भी आप पॉवर्टी डिफाइन करना चाहते हो, उसमें सिर्फ कमोडिटी या इनकम को क्राइटेरिया मत रखो, क्योंकि अदरवाइज इट नैरोज डाउन योर स्कोप and you think that once you provide those commodities you are done, but rather think about what a person can be made capable of using those commodities. Try to work on that. Okay, ma'am. But in India, we use income or consumption measure to measure a poverty. Yes, But why not this capability approach? इसको मेजर करना बड़ा बड़ा डिफिकल्ट है, ये बहुत ही अ, मतलब आप, और ये पहली बात तो दिस इज वेरी यूनिक, हर रीजन में एक अलग तरीके की स्टडी होगी फिर इस वजह से, राइट? हर Yes, रीजन की ma'am. अपनी खास बात होती है, हर रीजन में अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो आप वहां पे फिर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा बेस्ड प्रॉब्लम्स यू विल फेस, lot of resources, and this is something which is not very generally can be done with less amount of resources. Okay, ma'am. So this is not, I mean, this is not per se to define who is poor or not, but at least जब भी कोई पॉलिसी के बारे में सोचा जाए, एटलीस्ट लेट्स से स्टेट लेवल पे या किसी एक रीजन लेवल पे, तो ये सारे फैक्टर्स अगर इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, सो देन मे बी थिंग्स कुड बी फार बेटर, एंड इट वुड बी मोर इन लाइन विद कि आप एक बार कमोडिटी को अगर टारगेट करोगे तो मे बी आपको वो चीज बार बार रिपीट करनी पड़े उन लोगों की जिंदगी में, बट रादर उनकी कैपेबिलिटीज में जो लैक है उसका जो मेन कारण है, अगर आप उसको टारगेट करोगे तो मे बी आपको वन टाइम एफर्ट करके वो इंसान खुद ही इतना केपेबल हो जाएगा कि वो अपने आप को सस्टेन कर लेगा। ओके मैम। मैम बट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती है, हर इंडिविजुअल की अलग अलग, तो मैम इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा ब्रॉडली नहीं होना पड़ेगा कि मतलब किस चीज़ के लिए कितना है, किस चीज़ के लिए? तो अभी हम लोग देखो, राइट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट कंसेप्शन लेवल कि ये चीज होती क्या है, यस मैम। प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कंसिडरिंग द रिसोर्सेज, कंसिडरिंग द बॉटलनेक्स, कंसिडरिंग द इंस्टीट्यूशन, व्हाट एक्चुअली कम्स ऑन ग्राउंड इज एंटायरली डिफरेंट। तो वहां पे अगर आप उसको मेजरिंग लेवल पे ही डिफिकल्ट कर दोगे तो इम्प्लीमेंटेशन पे तो आप सोचो कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। यस मैम। तो आप पहले ही स्टेप को सबसे डिफिकल्ट स्टेप अगर बना दोगे तो जो आगे के डिफिकल्ट स्टेप हैं वहां तक तो आप बढ़ ही नहीं पाओगे, जी मैम। राइट? तो स्टार्टिंग लेवल पे कि चलो ठीक है, मान लिया कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वी टोटली अग्री विद दैट, बट कंसिडरिंग कि मान लो शुरू में लोगों को बहुत कमोडिटी लेवल पे ही बहुत प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट ट्राई टू टैकल दैट फर्स्ट। ऑलराइट, सो ये बेंचमार्क्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि एटलीस्ट हम ये अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर पाए विदाउट एनी ट्रबल, और फिर उन पे टारगेट करना शुरू करें, क्योंकि उसके बाद का काम भी लेस चैलेंजिंग नहीं है, वो भी काफी चैलेंजिंग है। तो एटलीस्ट एज अ कंट्री इफ वी आर इन सीरियस ट्रबल, इवन ऑन कमोडिटी लेवल इफ वी आर वेरी वेरी पुअर, सो जो भी लोग कमोडिटी लेवल पे पुअर होंगे और जो केपेबिलिटी लेवल पे मान लो जो सारी चीजों को कंसिडर करेंगे, तो capability level will give you a broader audience, right? यस मैम। More number of people will be poor according to that logic. So if your this inside circle is huge and this is even bigger, और अगर आपसे ये भी नहीं टैकल हो रहा तो पहले तो आप इसी चीज को क्योर करने की कोशिश करोगे ना, यस मैम। कि जो चीज सिंपल है पहले उसको टैकल कर लेते हैं। या मैम। तो पॉलिसी लेवल पे चीजें पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से ही स्टार्ट होती हैं। Anyways, coming to the discussion, yeah. So basically, what are we saying?
that Amrita Sen said we should not think about commodity level, but at a functioning level. Functioning. Functionings का क्या मतलब है? Functionings को इन्होंने कैसे define किया है? This is nothing but what a person does or they can do with the commodities of given characteristics. That they come to possess or control. This is the definition of functioning. So किसी भी चीज हमेशा functionings के terms में सोचने के बारे में बोला जा रहा है कि कोई भी इंसान को अगर एक commodity की access दी जाए, अगर उसका उस पर full control हो, तो उसका यूज करके वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, उसको बोलते हैं उस commodity की functioning. ठीक है? Yes. So और हम यहाँ पे समझ रहे हैं हु इज डेवलप्ड, हु इज पुअर, किसका वेलबींग अच्छा है. तो वेलबींग जो है, वेलबींग को समझने का सेंट्रल एस्पेक्ट जो है वो ये होना चाहिए कि वेदर द पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ चॉइसेस और डू दे हैव कंट्रोल ऑफ वंस ओन लाइफ. ठीक है? और किस किस तरीके की फंक्शनिंग्स जो है हम चाहते हैं. व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनिंग्स डू वी, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनिंग्स are of value to us. किस किस तरीके की फंक्शनिंग्स हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल है. दे कैन, आई मीन दे कैन बी अलॉट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट वन ऑफ देम कुड बी बीइंग हेल्दी. राइट? Yes, ma'am. इट कुड बी बीइंग वेल नरिश्ड. It could be, wearing nice clothes, wearing, In a good standard of living. yes. To have a freedom to move from one place to another, to be mobile. To have self-esteem. Right? Yes. To be taking part in the life of the community. So these kind of things are something which are very valuable for us, right? Yes, ma'am. And it's not just the lack of commodities. So many people you will feel maybe they have resources, but maybe they lack self-esteem. Maybe they don't feel part of any community, or maybe they feel very, very alone. Yes, ma'am. So that is also lack of development. And these days, more and more people are suffering from these issues. So इस definition से या इस logic से तो
even the people who have access to material resources might not be developed, right? Yes, ma'am. So Might be they will mentally unhealthy. yes, mentally they might be unhealthy. People might be having, just say for example, if you consider somebody who's working, but every day they're eating outside food, they don't have, I mean, they're managing everything on their own, they're eating outside food, they're eating unhealthy food. So this idea of being nourished, this is also lacking in them. They're not Yes, healthy. ma'am. They feel, maybe they are not feeling very confident also. Maybe they're not talking to anyone. Maybe they don't feel like going outside or meeting anyone. Even if you have material resources, I'm saying. Yes, ma'am. So these kind of things are also there. So now let's see what possibly could be the reasons for why there is an actual difference between, the actual real income that you're earning and why you may or may not be able to take advantage of that. So Amritya Sen identified few sources of why there is so much disparity between, the real income and the actual advantages that people are able to take of that income. So what are we trying to understand? Sources of disparity. Sources of disparity between the measured real income and the actual advantages. So हमारा लॉजिक तो हमेशा यही रहता है ना कि we try to measure everything with real income and we think this will directly, lead to people enjoying the advantages. So right now what we are trying to understand why there is so much disparity between, maybe people have access to real incomes or maybe government implement some policy to improve their income, but actually वो उनकी एडवांटेज ना ले पाए, उनके बीच में डिस्पैरिटी किस किस कारण से हो सकती है. So the first could be personal heterogeneities. पर्सनल हेट्रोजेनाइटीज का क्या क्या मतलब हम लोग समझ सकते हैं? मतलब द डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ ड्यू टू फैक्टर्स लाइक disability or maybe some illness or age or gender. Yes, Yes, ma'am. इनकी वजह से काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं. सो जैसे हो सकता है कि अगेन कि with the same real income people will have different results if one is disabled and one is not. Think in that terms कि your disability level, if you are disabled or not, if you have some sort of illness, your age, which gender are you of, they will also determine what is the actual benefit that you can take of the resources that you have, right? Yes, ma'am. Secondly, it can be environmental factors. In my environmental diversities. So these are differences because of factors like climate, or you can say pollution, right? इसकी वजह से भी differences हो सकते हैं. Maybe Yes. you are, staying in a place wherein flood is an everyday activity, or maybe every season flood आती है. Yes, ma'am. So that could also lead to these differences. Social climate.
वेरिएशंस। सोशल क्लाइमेट का मतलब है कि कुछ जगह हैं जहां पे सोशल क्लाइमेट का मतलब होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राइम, वायलेंस, सोशल कैपिटल। Some societies might be by nature, very collective in nature. कुछ सोसाइटीज बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक हो सकती है, राइट? अपने अपने में रहो। ऑल द Yes. अर्बन सेटिंग्स, दे देयर पीपल डोंट रियली केयर अबाउट एनीवन। नेबर्स को ही नहीं पता होता कि कौन कौन है, राइट? Yes, ma'am. So there could be a lack of connections over there. Some people might be more crime prone. There might be more violence in some places. So ये चीजें Yes, भी ma'am. इम्पैक्ट करती हैं। उसके अलावा देर आर डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली। सो फैमिली लेवल पे हो सकता है दो फैमिलीज बिल्कुल सिमिलर हों इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, बट उनके अंदर विद इन दैट फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कुड बी वेरी डिफरेंट। हो सकता है कि कोई ना कोई एक इंसान डिसएडवांटेज पे हो या उसके हिस्से कम चीजें आ रही हो, राइट? Yes, ma'am. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of resources within families. Often, you know, most of the places in India, often disadvantaging girls. उसके अलावा relational perspectives. मतलब इसका मतलब ये है कि there might be some places wherein few things are considered necessary according to local customs. हर प्लेस की जगह जैसे जैसे प्लेसेस बदलती हैं वैसे ही उनके लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ इवन आइटम्स, दे डिफर, राइट? सो Yes, ma'am. डिफरेंसेस इन नेसेसरी गुड्स ड्यू टू लोकल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। सो मान लो कोई आप एक बहुत हाई क्लास सोसाइटी में रहते हो, वहां पे मान लो अगर आप रहोगे और आप बिल्कुल एकदम देसी तरीके से रह रहे हो, समटाइम्स यू माइट फील लेफ्ट आउट, राइट? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन वे ऑफ क्लोथिंग और अदर थिंग्स, राइट? Maybe you don't have a car, suppose some things like that. तो वो चीज, having a car is not a necessity, right? Yes, ma'am. But because of the kind of place or maybe the kind of situation that you are in, maybe that is considered important for them in that local scenario. Okay. तो ये चीजें भी मैटर करती हैं कि आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हो, फिर आपको वहां के कस्टम्स के हिसाब से अगर आपको जो चीजें उनके लिए जरूरी हैं, इफ यू डोंट फुलफिल देम, यू माइट फील इंफीरियर, यू माइट फील लेफ्ट आउट. Let's say if you are studying in a college wherein everybody is speaking in English, teachers are conveying everything in English, तो हो सकता है कि एक बच्चा जो विलेज से आया हो, जिसको ये सब चीजें नहीं पता हो, वो एकदम से आते ही बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करेगा, और जो कि रियलिटी है, होता भी है ऐसा. Yes, ma'am. Same happens in office spaces also. So these Yes. kind of things are also there. Okay. Ma'am, जी. did this third point, social climate variation, will not be come under the environment point?
सो दिस इज नॉट मतलब अर्थ एंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट वाला पर्सपेक्टिव नहीं है, ये सोसाइटी लेवल पे किस तरीके का माहौल है, ओके ओके ओके। जैसे क्राइम्स कैसे हैं, वायलेंस कैसा है, सेफ्टी कितनी है, इस तरीके की चीजें। सो लाइक दिस साइकिल एग्जांपल दैट वी गिव, दैट वुड कम अंडर सोशल क्लाइमेट सिस्टम। ओके या सो मतलब क्लाइमेट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द एक्चुअल क्लाइमेट। मैम, या in these sources point, ma'am, we can also write the examples also. For या example, यस okay, to extend the answer, ma'am, if it's in 10 marks question. यस यस डेफिनेटली। तो आप So, एनेक्डोट्स दे सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो। डिसेबिलिटी के केस में उसको बेचारे को उस पर्टिकुलर आइटम के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता होगा, so that could lead to differences in the actual value of the income that they are earning. Pollution के केस में, let's say you are staying in Delhi, तो every single winter starting में ही लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं अलग अलग तरीके की, yes, ma'am. breathing and all of these things. So Smoke. यस, सिमिलरली हो सकता है कि कोल्ड हॉट क्लाइमेट में लोगों को, मान लो अब ठंड में रहे, अब हॉट क्लाइमेट में लोगों को अपनी गर्मी कंट्रोल करके रखनी है, तो फिर कूलर होना या एसी होना या कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऐसा करना, वो उनके लिए एक नेसेसिटी बन जाती है। Yes, ma'am. कोल्ड क्लाइमेट में फिर अलग सिचुएशन है, या तो आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त करके रखोगे कि उसके लिए आपको कुछ सेपरेट अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। Yes, ma'am. So these kind of examples and differences you can give in this, Okay, ma'am. right? So basically, the main point that comes out of this entire discussion is कई बार social convention बड़ा important हो जाता है लोगों के लिए। कई societies में मे बी आपके पास एक टीवी ना हो, मोबाइल ना हो, ये सब चीजें ना हो, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते हो। आज के दिन जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं जो अ, जैसे एक बहुत ही जेंजी एग्जांपल हो गया कि एवरीबडी इज टेकिंग आईफोन, पीपल आर टेकिंग एवरीबडी इज टेकिंग आईफोन इवन ऑन ईएमआईज। व्हाट इज द नीड टू बाय दीज थिंग्स ऑन ईएमआईज एंड पीपल नॉट डोंट टेक ईएमआईज फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, 12 12 महीने, 24 24 महीने की ईएमआईज पे लोग आईफोन खरीद रहे हैं। क्यों? Show off. शो ऑफ भी होता है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। प्लस Societal status. कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो सबके पास है, तो अब मेरे पास भी होना चाहिए। अब वो एक कन्वेंशन बन गया है लोगों के लिए, एक एस्पिरेशनल आइटम बन गया है। Yes. मतलब नो, डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन और एनीथिंग, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, पीपल, स्टार्टिंग फ्रॉम पीपल जो ऑटो चला रहे हैं वो भी, जो मे बी जिनकी कोई छोटी सी शॉप है वो भी, जो मे बी बेरोजगार है वो भी, दिस एवरीबॉडी जस्ट wants to buy this even on EMI. I really find it very stupid. I mean personally, कि और ईएमआई भी एकदम 24 24 महीने की, अब उसको प्रमोट भी ऐसे कर रहे हैं, पीपल आर एक्सेप्टिंग ऑल्सो। इट हैज बिकम अ सोशल कन्वेंशन कि हाँ ठीक है, ओके, इसके पास आईफोन है, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मान लो अगर हम शो ऑफ की बात करें, तो शो ऑफ तो बहुत और भी चीजों से हो सकता है, राइट? Yes. या मान लो अब वो इंसान हमेशा ईएमआई भर रहा है, ठीक है, उसकी करंट सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो अगर वो सिर्फ एक वो पीस ऑफ मोबाइल लेके जाएगा तो उससे शो ऑफ भी नहीं होगा, Yes, ma'am. बट पीपल आर टेकिंग दैट प्रेशर बिकॉज इट हैज बिकम अ कन्वेंशन। तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीजें कन्वेंशन बन जाती हैं। इफ यू थिंक अबाउट जैसे कई जगह पे आपने सुना होगा, इसका इसी का ही एक एग्जाम्पल है, जैसे कई जगह पे मान लो दहेज लेना, दहेज देना, दिस हैज बिकम अ कन्वेंशन, राइट? Yeah, in Bihar and Haryana. यस, एवरीवेयर, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट्स देयर, राइट? तो मान लो कोई इंसान अगर इन दोनों में से कोई चीज ना करना चाहे, मान लो कोई दहेज नहीं देना चाहता, तो उसको कितना बिल्कुल सोसाइटी से अलग ट्रीटमेंट मिलेगा।
इवन इफ दे आर डूइंग इट फ्रॉम अ वेरी जेन्युइन हार्ट, कि क्या नीड है इस चीज की, बट सोसाइटी लेवल पे लोग बॉयकॉट कर देते हैं उनको। ट्रेडिशनल सेटिंग्स में, अर्बन सेटिंग्स में धीरे धीरे थिंग्स आर चेंजिंग, बट ट्रेडिशनल सेटिंग्स में ऐसा देखा जाता है कि या तो लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल और मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉय, राइट? इस तरीके की Yes. बातें होती हैं कि Yes, ma'am. यू ट्राई टू डू समथिंग अनकन्वेंशनल और नॉट समथिंग यूजुअल। तो कुछ लोग इस चीज के प्रेशर में आके वो चीज कंटिन्यू करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इसी चीज को प्रेशर में आके ही कंटिन्यू करते हैं। Yes, तो ma'am. ये सारी चीजें भी हैं। तो सोशल कन्वेंशन, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। सोसाइटी में आपकी कितनी इज्जत है, ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो व्हाट फाइनली कम्स आउट ऑफ दिस डिस्कशन इज कि जो आपकी रियल इनकम है और कंजम्पशन levels alone, they are insufficient measures of well-being. Having many commodities is meaningless if they don't meet the consumer's desire. राइट? एंड मान लो ये सब तो चीजें हैं ही हैं, अब बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें भी लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए ना, वो भी बड़ा पर्सनल और एक कॉन्टेक्चुअल चीज हो जाती है। किस तरीके से, जैसे मान लो एक रोटी हो गया या राइस हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल, इट्स अ कमोडिटी, राइट? Yes, ma'am. अब ये भी किसी इंसान को कितना एब्जॉर्ब हो पाते हैं, कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, ये भी कितनी सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि वो कितने एक्टिव हैं, उनका सेडेंट्री लाइफ तो नहीं है, एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करेगा, Yes, ma'am. उनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, Yes. ठीक है? वो आ, मतलब उनको कोई ऑलरेडी डिजीज तो नहीं है, राइट? उनको Yes. न्यूट्रिशन के बारे में किस तरीके से जानकारी है ताकि वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ले सके, आर दे टेकिंग प्रॉपर वेजिटेबल्स और नॉट अलोंग विद दीज आइटम्स। Yes, ma'am. तो जनरल लेवल पे उनको कितनी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है, ये सब भी मैटर करता है। इसको किस वक्त खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये सब भी मैटर करता है। Yes. तो सेम चीज भी बिकॉज ऑफ यू नो पर्सनल डिफरेंसेस can have very different impact on people. तो इसीलिए इनका कहना ये है कि वेलबींग, डेवलपमेंट, पॉवर्टी जो है, ये बहुत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज जस्ट डिफाइंड ऑन एन इनकम लेवल। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर हम लोग यंगस्टर्स की बात करें, आई एम ऑल्सो यंगस्टर, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि the more money that you get, maybe you'll become more and more happy, right? आज के दिन तो सपोज जिसके पास पैसा नहीं है वो तो यही सोचता है ना कि पैसा आते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Yes, ma'am. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अगर देखोगे या जिनको भी सुनोगे या जिनकी भी आप बातें सुनते हो, आपको क्या देखने को मिलता है? हाँ, पैसा ना होना इज अ प्रॉब्लम, पैसा होना कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट, वी डोंट नो अबाउट दैट। पैसा होना कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स,
but पैसा होना can solve all the problems. It is not something which could be a good proposition. Lack of money is problematic. Having money, whether it will solve all your problems or if maybe it will create new problems, that is something that is questionable, right? Yes. तो commodities की lack is problematic, but commodities होना is enough or not? Can everybody use it at the same level? These things are questionable, right? Yes. तो यही हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है. अब इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली कि जैसे हमने फंक्शनिंग डिफाइन किया था कि मतलब कोई भी. मैम, जी. मैम ये जो आपने जो 5 पॉइंट्स लिखवाया मैम रीजंस के, ये जी. ये पॉइंट से ये जो आपने लाइन बोला वही इम्प्लाई करवा रहा है, जो ब्लू से लिखा है आपने मैम अभी, राइट. अबाउट रियल इनकम और कंजम्पशन लेवल में. दिस वन कि हाँ ये सब जो है हमने जो डिस्कशन किया उसका मेन फाइनल जिस्ट यही है. ओके मैम, या. थैंक यू. या. सो हाँ, व्हाट आर वी सेइंग नाउ कि what somebody can do and is capable of doing with whatever resources they are provided, that is also dependent on a few more things. Like what? Like, so हमारा कहना क्या है कि जो functioning है, they also depend कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां के कन्वेंशंस कैसे हैं. What is considered normal, what is not considered normal. Social conventions in society. ठीक है. ये किस तरीके की सिचुएशन है. आप अगर एक फैमिली में हो तो फैमिली में आपकी पोजीशन क्या है, आपकी बातें सुनी जाती हैं या नहीं, आपके डिसीजंस को इम्पोर्टेंट माना जाता है या नहीं, आपकी ओपिनियन भी ली जाती है कि नहीं. सो दीज थिंग्स ऑल्सो डिफाइन whether you will be capable or you will have the freedom to choose things that you want. So a person's position in family and society. ठीक है. Your capabilities, जैसे मान लो you might have enough resources and you want to spend time with your friends, with your family, but maybe to get those resources you are at a place wherein you have to be distant from them. लोग माइग्रेट करते हैं ना, परिवार से दूर रहते हैं बहुत सारी चीजों के कारण. तो दैट Yes. ऑल्सो डिटरमाइंस कि वो क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे. सो फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ठीक है. And whatever kind of society that you're living in, whatever kind of community that you're living in, what kind of activities are they doing, what kind of festivals they are celebrating, what kind of events they are organizing, these things also matter, right? Yes. So presence of festivities and events. So ये सारी चीजें भी functionings को impact करती हैं. तो after this entire, considering all the points, हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी इंसान का वेलबींग सिर्फ कमोडिटी कंजम्पशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंडेंट नहीं होता, बट रादर कमोडिटीज जो हैं दे शुड बी व्यूड एज अ मीन्स टू एन एंड rather than an end in itself.
Like, for example, what is the meaning of this statement? Means to an end and not an end in itself. क्या मतलब है उसका? Can you give me an example of something which has meaning in itself also and which is also means to an end? Your education. आप जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो अपने आप में भी पढ़ाई सफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि यू कैन एंजॉय स्टडिंग वॉट एवर यू आर स्टडिंग, राइट? Yes. But it is also a means to something else. Maybe it's a means for you to crack some exam which can ultimately give you a good job, which can ultimately be the reason why you might be doing all of this. Maybe you can get a status in the society, maybe you get money, whatever, right? Yes, sir. तो मान लो कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मे बी उसको ह्यूमन ब्रेन के बारे में या लोगों के बिहेवियर, नॉट ह्यूमन ब्रेन, लोगों के बिहेवियर, लोगों की थॉट्स, ये सब के बारे में मान लो पढ़ के अच्छा लगता है. एंड इन इट मीन्स टू एन एंड, मतलब ठीक है, हो सकता है इट कुड बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर समथिंग. Yes, sir. तो इनका कहना यही है कि कमोडिटीज को जो है किसी चीज का जरिया समझा जाना चाहिए, कमोडिटीज को एंड इन इटसेल्फ नहीं समझा जाना चाहिए. सो कमोडिटीज लाइक हेल्दी फूड का अपने आप में क्या रेलेवेंस है? Good physique and मतलब immune system हाई रहेगा, ठीक immunity है, हाई रहेगी. ठीक है. इम्यूनिटी हाई रहने से क्या होता है? कोई भी इंसान को हेल्दी क्यों रहना है? Prevent from disease and viruses. ठीक है, आप प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज और वायरस होके फिर क्या करोगे? एक गुड लाइफस्टाइल रहेंगे. तो आपका गोल क्या है? एक खुश रहना, आपको एक्टिव जिंदगी जीना, आप प्रोडक्टिव रहो, आप हैप्पी रहो, आप जॉयफुल रहो, वो है ना एंड गोल. Yes, ma'am. और उसका रास्ता, जरिया क्या है? कि हेल्दी खाना खाओ, जी. अच्छे थॉट्स लाओ, अच्छी जी. चीजें देखो, अच्छी चीजें पढ़ो, मेहनत करो. ये सब तो क्या है? ये तो मीन्स है ना टू हैविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ, हैविंग अ हैप्पी लाइफ, हैविंग अ गुड लाइफ. Yes. तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि कमोडिटीज जो है ना किसी चीज को पाने का जरिया है, वो अपने आप में फाइनल आइटम नहीं है. तो जैसे कि मान लो न्यूट्रिशन की बात करें, तो अल्टीमेट न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? हेल्थ के लिए. हेल्थ क्यों जरूरी है? हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप पेन में रहोगे, पेन में रहोगे तो आपकी जिंदगी, डे टू डे जिंदगी विल बिकम हेल. You will not be able to enjoy anything, you will not be able to do any work, you will not be able to pursue any hobby which makes you happy, right? So Yes, let's say if your ultimate, ma'am. जी, Will you repeat the line which you said before? Commodity should be viewed. morality should be viewed as a means to an end rather than an end in itself. Yes, ma'am. इसके पहले आपने कुछ बोला था, मैम. इसके पहले This. Okay, so I was just saying कि after this entire discussion, we come to a conclusion, which is this. Okay, ma'am. Okay. Yeah. So if the ultimate goal is health, मान लो न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें कि न्यूट्रिशन का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, unless I'm trying to become a nutritionist or maybe a dietitian. Yes. राइट, न्यूट्रिशन का मेरे जिंदगी में इतना ही रेलेवेंस है कि वो मुझे हेल्प कर रहा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, जो कि जरूरी है मेरे लिए टू 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 गेट पर्सनल एंजॉयमेंट, कि मैं पर्सनल लेवल पे एंजॉय करूं, एंड सोसाइटी लेवल पे सोशल फंक्शनिंग, सोसाइटी लेवल पे आई एम एबल टू फंक्शन, राइट? Yes. सो इसीलिए आप जब भी मीनिंग ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट अगर आप समझना चाहते हो, so then you should be considering all these broader aspects.
So ये सब चीजें जो है you should be considering. All मैम right. मैम मतलब यहाँ पे जो आपने बोला ट्रू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ब्रॉडर एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड, सो मैम इन दिस वी हैव कंसिडर्ड अबाउट द फैक्ट फंक्शनिंग आल्सो डिपेंड ऑन दीज पॉइंट्स मैम. या ये हम या बस ये बोल रहे हैं, वी आर जस्ट समराइजिंग दिस डिस्कशन. ओके, द ओवरऑल टिल नाउ वी हैव व्हाट वी डन. यस, वी आर ओके. सेइंग दैट कि अगर डेवलपमेंट का ट्रू मतलब आपको समझना है तो आपको सिर्फ इनकम के बियॉन्ड जाके, आइटम्स के बियॉन्ड जाके, वो आइटम आपको कितनी यूटिलिटी दे रहा है उसके बियॉन्ड जाके, वो आइटम आपको क्या चीज करने के केपेबल बना रहा है, आप उसको भी कंसिडर करो. दैट इज योर केपेबिलिटी अप्रोच. ऑलराइट. Yes. Yes, ma'am. So this is what we have to consider. Okay. ओके, इसमें कुछ चीजें और हैं जो हमें डिस्कस करनी है. सम ब्रॉडर points we have to discuss, and then there is another discussion that we have regarding the idea of happiness and development. वो ये दोनों चीजें किस तरीके से रिलेट करती हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. Okay, ma'am. So I think after that we will be done for this particular chapter, and once the chapter is finished, I will be uploading the entire chapter notes uh, like within 3-4 days of the finishing of the chapter. This is how we will be doing everything. ठीक है, हर subject में हम लोग ऐसे ही करेंगे. Yes, ma'am. So I think we can stop here for today. Okay, and continue the same on Friday. Hopefully things will become, right now everybody is in a cozy mood. अभी उनके जो है holidays have extended for 10 days. So everybody is just enjoying that. So once everything settles, we will start having longer sessions. So yeah, okay. All right. Thank you. Thank you, Chetan. Take care. Thank you, ma'am.